I'll share my screen. Is my screen visible? Yes. Okay. So first, to start off with a disclaimer. So I am not an expert on Canva. Only thing is that I have been using it since almost 5 6 years now. So that is how I have learned by making mistakes and by reading about it. And I've not done any sort of course or any knowledge of graphic design. All that has come is with making mistakes. So that's all what I would be sharing. Very little knowledge which I have with me that I am going to share today. So I just have a 10 slide presentation just to give you brief outline of what should be done, or what are the basic principles of graphic designing, and then we'll straight on move to Canva and look how we can use Canva in our regular usage, right? So uh, first thing, graphic design is the art and practice of combining text, images, and other visual elements to communicate a message to the audience in the most organized and a functional way, right? It is essential for branding and marketing. Nowadays, half of the marketing happens on social media, right? And it's a visual medium. जो दिखता है वो बिकता है. So it plays a significant role in creating a company or a individual's brand identity, right? So effective graphic design would use combination of all these aspects, wherein color, the fonts, typography, the composition, and all the other elements which create a visual appeal and grab the audience's attention. So all the motive behind designing a good social media creative is to grab the audience's attention. Correct? Everybody is fighting for attention on social media, right? So these are five key aspects that make an effective social media creative. Okay. First is consistency. First and foremost, consistency is very crucial in building a strong brand identity, right? And I will also comment on what options right now we are using in our business, what all creatives which we are using, and what are the pitfalls of using them. क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, right? That I will try to cover. So we have to ensure that all our social media creatives are consistent in terms of the color palette. Color palette has to be in sync with our brand identity. Brand identity is established by, first and foremost, is our logo, right? The color palette which is in our logo, that should somewhere reflect in all the creatives, right? The fonts has to be similar in most of the creatives which we make, and the overall look and feel and visual appeal of each and every image has to be in continuity. It cannot be that you play with too many styles, too many different types of formats. That will create a clutter on social media. We want that एक टाइप का क्रिएटिव दिखता है तो इट जो भी क्लाइंट है या जो भी देखने वाला है उसके माइंड में आना चाहिए. इट इज इजीली आइडेंटिफाई कि ये हमारे ब्रांड का है क्रिएटिव, राइट? द विजुअल अपील, द सोशल मीडिया क्रिएटिव शुड बी विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू रीड, right? So it is by default that whatever images which we use in our creatives have to be of high quality images. The picture pixel should not be blurred. It should be very crisp and clear, easy to read fonts, right? The size of the font also matters, right? To create a visually pleasing design. द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी क्रिएटिव बना रहे हैं हम लोग एक मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, राइट? वी आर एग्जीक्यूटिंग आवर कस्टमर्स थ्रू, और पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू आवर messages. So the message what we want to convey has to be very clear and easy to understand. Any layman should be easily able to identify himself in that situation, and whatever message we are trying to put across, it should ring a bell in the prospective client or a client's mind, right? So it
it goes without saying that we should not be cluttering our creatives with too much of information. The information overload will dilute the entire purpose of a creative, right? So avoid using too many words, too long sentences in a creative is a complete no-no, right? The message has to be crisp and in a very short format, right? And to the point. Regarding branding, again, the branding elements like brand logo, brand colors, and fonts we use in each and every social media creative have to be in sync with our brand identity. So you can't be using different fonts in different creatives, right? I'll tell you the pitfalls of using, without any offense to anyone, but the current creatives which we are using from MCS or Masterstroke or any other platform, the problem is no two images from these platforms carry similar fonts, right? Similar color palette which matches our brand, our logo. So uh, I'll just try to show some examples on my Insta profile itself, that how I used to post earlier with my own creatives, and after I stopped designing most of the creatives and outsourced it to Masterstroke and Anchorage, how the layout on social media has changed on my LinkedIn on my Insta profile, right? The call to action, again, the last and most important thing is whatever message we have passed on with our creative, there has to be a call to action. There has to be a clear call to action to encourage the audience to take an action after viewing. जो मैसेज पास ऑन कर दिया उसके बाद सामने वाले को क्या करना चाहिए वो भी एक उसमें मैसेज क्लियर जाना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन आवर केस इट वुड बी start investing or take insurance or whatever the creative is about, right? So these are the 5 key elements that each and every social media creative has to cover. Okay, now we move on to what are the 7 principles of design. अगर कोई भी graphic design कर रहे हैं तो क्या 7 principles है which we have to take care that every post or every creative is aligned to these principles, right? These are basic principles of design which we have to take care while designing. First and foremost is balance. The image has to have a balance in terms of you know text या graphics जो भी डाल रहे हैं उसमें एक balance होना चाहिए. Any element which is paged on a page carries a visual weight, right? Like you can see in these examples over here. अगर ये इस तरीके का क्रिएटिव है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है तो इमेज के नीचे टेक्स्ट है, अगेन हियर इमेज के नीचे टेक्स्ट है, एवरीथिंग इज अलाइंड इन अ सिमेट्रिकल मैनर, राइट? And in this example on the right side you can see the images are aligned asymmetrical. So whether symmetrical or asymmetrical, there has to be a fine balance between the image and text. It should not look out of place, right? It can range from our the size of the text, the color and texture, right? In order to make a design stable, we need to have a balance on the graphic or an image. Next is unity. Unity is in the sense that whatever design or whatever elements which we use on the image have to have some unity, right? Unity in terms of color or unity in terms of size, right? For example, using similar colors that match and integrate the elements organically and makes it appear as to be a part of the image, not out of the place. Correct? Over here, just for the sake of example, the circles are of different size, but they are of similar color, right? That similar color gives it a unity. And in the right side, you see different colors, but the size of the circle is same. This is what I mean by uniformity. Uniformity in terms of size or uniformity in terms of color, right? Third is contrast. Why contrast? Because contrast refers to the differentiation in the design. यानी किसी चीज को highlight करना, if you want to highlight something, उसको contrast इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो image के अंदर उठ के आएगा वो चीज,
right? The variation makes certain elements stand out more than others. It can range from using different colors. अगर कोई message है, हमारा most of our graphics which we put out is text heavy. So whichever part of the text is important, that can be highlighted by either by color, right? I'll show it in other examples also, how we can highlight it with the color, so that attention किसी का भी उधर पहले जाना चाहिए, जो important चीज है वहां पे attention जाना चाहिए. That we can highlight with either a form of a contrast in color or a contrast in shape, right? And this is a example. Third is the example of scale in contrast in scale, right? अगर size में कुछ छोटा बड़ा, टेक्स्ट में भी छोटा बड़ा कर सकते हैं क्या, इमेज में भी या ग्राफिक में भी छोटा बड़ा साइज करके वी कैन हाईलाइट व्हाट वी वांट टू convey to our audience. Fourth is the emphasis. I mean, similar to contrast, the emphasis is also a strategy to grab viewers' attention to a specific element on the graphic. Right? This can be in the form of a button, यानी call to action का button है, वहाँ पे we can highlight, या तो हमारा website है, right? वहाँ पे if we want to drive the traffic to our website, जो website का नाम है उसको prominently display करेंगे, right? The purpose is to make that element stand out from the rest of the graphic. So emphasis, जो point पे हमको emphasis देना है, that has to be highlighted way in a some way or the other. Like these are just the examples. अगर ये 6 इतने टाइप का एलिमेंट्स है, उसमें ये स्टैंड आउट कर जाता है, राइट? इन द क्लस्टर ऑफ these all these circles, this circle is highlighted. So to grab the attention, we have to highlight certain portion of the image so that the message is conveyed clearly. Fifth element is repetition. Repetition in terms of design elements, right? Texture, जो हम लोग background use करते हैं, हमारे creatives में जो background होता है, जो layout होता है, वो repetitive होना चाहिए ताकि it सारे images जो है वो identifiable हो, right? जो it is easy to identify कि ये हमारा image है, right? A repetitive element could be in terms of shape, size, form, color, or the entire format of a layout, right? So repetition होना चाहिए, continuity दिखना चाहिए, right? Most of the graphics which we design should be in continuation. I'm just explaining these concepts. जो practical हम लोग Canva में move करेंगे, तब I will show what is the significance of each and every aspect of the design. Rhythm, all these things are correlated. Rhythm, there has to be certain rhythm. अगर color palette अगर different use कर रहे हैं but format same रख रहे हैं, so it will also carry a rhythm, right? Design language same है, although color palette दूसरा use कर रहे हैं. Color palette also has to be related to your brand identity, but उसमें कुछ variation, कुछ look and feel different कर सकते हैं, but the overall layout can be the same. The color use of different color with different themes is fine, but the overall look and feel should be it should be more organized, right? So repeatedly variations के साथ कर सकते हैं. I mean, to give a fresh look we can use different colors based on the theme, but it should be in sync with the overall design of our brand identity. And the last one is hierarchy. This generally hierarchy would टेक्स्ट हैवी जो सब्जेक्ट होता है उसमें हायरार्की इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट सही होना चाहिए. एंड मोर और लेस दिस वुड बी आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन वी फॉर एग्जांपल वी कम आउट विद न्यूज लेटर्स या ब्लॉग पोस्ट करते हैं. तो द टेक्स्ट हायरार्की, जस्ट लुक एट ओवर हियर, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है फर्स्ट इमेज में, यानी प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है. और वेयर एज इन द सेकेंड इमेज यू सी there is some structured way of कहाँ पे क्या highlight करना है. There is certain portion which is highlighted, कहीं पे छोटा text है. So this looks more readable. If you come out with newsletters, so there has to be some structure to that, right? एक priority or a list of priority के हिसाब से we have to design that newsletter so that it is more appealing. See, any which ways if we look at it, टेक्स्ट हैवी मैटर जो है कोई पढ़ना नहीं चाहता है.
if we look at the statistics, average attention span of a social media users is just 3 to 8 seconds. 3 से 8 सेकंड का attention span है. तो वॉट एवर यू हैव टू डू, अगर हमको किसी को हुक करना है हमारे पोस्ट पे, उनको 3 सेकंड से ज्यादा अगर हुक किया तो देयर इज मोर लाइकलीहुड दैट दे विल रीड द कंटेंट. अगर पहले 3 सेकंड में हुक नहीं किया किसी को आपके इमेज के ऊपर, दे आर गोइंग टू स्क्रॉल थ्रू द, आई मीन जो सोशल मीडिया पेज है उसको स्क्रॉल अप कर देंगे, राइट. द पर्पज ऑफ अवर क्रिएटिव विल बी लॉस्ट. So having a proper hierarchy in our communication will help us grab attention of the user. So let's now move on to directly to the Canva. So this presentation also which I have made, it is made using Canva, and I am also presenting it from the Canva platform itself. This is clear up till now. Basic जो design principles है. Yes, absolutely. Thanks for sharing this. Yeah, so this again most creatives जो भी हम लोग डिजाइन करते हैं, मोर और लेस एवरीथिंग इज टेक्स्ट हैवी, बिकॉज हम लोगों को एजुकेट करना है, राइट. टेक्स्ट हैवी होता है या तो डेटा हैवी होता है. तो हाउ टू प्रेजेंट इट इन सच ए वे दैट वो दिखने वाले को ओवरबर्डन भी नहीं करेगा एंड मैसेज भी कन्वे होगा. So I'll start from scratch, right? So this is this I am using the Canva desktop version, okay, and I am using the paid version. So once this is the home page, right? Once you log into Canva, you make your profile. This is the basic login page, right? What do you want to do over here? I mean, there are various options. Social media post, जो भी template बनाना है. See, each and every social media page, उसका जो creative होता है, उसका dimensions are different. Like Facebook post का dimension is different. Instagram post का dimension is different. LinkedIn का dimension is different. Twitter का dimension is different. Okay, so a common अगर post सब social media platforms पे डालना है तो एक social media करके इसमें template है, right? This size more or less matches most of the social media platforms. ठीक है. So whatever platform we want to do, एक तो वो हो सकता है कि we create one common creative for use on different social media platforms. ठीक है. तो यहाँ पे if I type social media, तो ये templates आ जाएंगे, right? For each and every I mean graphic you want to design, either you can utilize a different template or you can create your own template, correct? So let us create our own template. So this is the canvas, okay, in which we have to design, and this social media template is generally I mean aligning with most of the social media platforms. Facebook पे भी, LinkedIn पे भी और Insta and Twitter पे भी ये काम आ जाएगा. But if you want to customize it more for each platform, for example, if you see over here, for my own use, I have two different templates. One is LinkedIn format, right? This format I use on LinkedIn platform, and Insta and FB I have separate design, right? These are templates, correct? So in this, see, अगर एक canvas, अगर एक creative में once you are designing a creative, most important thing is जो visual अपील, यानी जो किसी भी यूजर का जो नजर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रियलाइज दैट किसी भी यूजर का पहला नजर पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप लेफ्ट हैंड साइड. by default, if whatever thing we are reading, we start from the top left hand corner, correct? So first and foremost thing is the logo, brand logo should be placed either
ideally should be placed on the top left side or top right side, right? The logo should be placed on the top end of the graphic, correct? So for example, let's see over here. See, if you want to start designing the image, what you have to do is you can upload your logo from here, right? Uploads from here, upload file, you can upload any image from your desktop. I've already uploaded our team leap logo over here, so it's showing over here. I'll just take it, resize it, and place, say for example, in the top right corner. Now this box which you see in the middle, this Canva is highlighting me that all my graphic or all my information should come between this box, right? This in the middle, the box is highlighted, right? So all my text or most of my information should come in between this space to optimally utilize the space, correct? So top left or top right should be the placement of the logo, right? Ideally it should be top left, but you can have the freedom of moving it either in the top left, either keep it in the center, right? I'm just moving the image with my mouse, and this is showing me the center alignment, right? The middle line which is showing center alignment, right? Either the logo can be placed in the middle or in the right, correct? These are the three places where your logo should be placed. Ideally it should be the left side or the center, or whichever format you want. Now as now comes the text part. If we want to add a text or if we want to add an image, right? If you want to add another image, there is an option in the paid version. Most of the images which we get are free of cost, right? Most of the paid images, if we are taking a paid version, most of the images, all the images you can use for free. If you are using the free version, certain images are free, and rest of it you have to either purchase or you can utilize from Google. You can download it from internet and use it over here. Now let us just put a image, or if you want to put a image, or there are certain graphics which we can put. All the graphic elements which we want will be present in elements, right? In elements we have lines and shapes, right? You can put any line or any shape over here. There are multiple types of shape which you want to utilize, right? And again, if you want to overlay, I mean, say for example, if you don't want a white background, you if you want to change the background color, let me just first move on. Okay, so before doing this, see, for example, if I placed my logo over here, right? I placed my logo on this page, okay? Automatically the Canva will prompt me what are the color palette of my logo. Whatever the colors which are present on my logo, everybody can focus over here. Here my logo is shown, correct? Whatever the colors are present in my logo, that palette is shown over here, right? Previously this was not the case. So what we used to, there is another site called Canva.color palette. Canva.color palette. If you type that in Google, you will get a go to the website. You just upload your logo in that site, and it will give you the color palette, right? And हर एक color का एक code है, right? If I highlight on, I mean, move my cursor on this color, it's showing hash 1654 AB. This is the code of my color. You can either copy this from here also, right? Or otherwise it is directly giving you the color palette. So if you want to have a image which is the background of the image, if you want it in your color, so you can choose it from here. These two are the highlight colors, these are the subordinate colors, right? So whatever background if I use, it has to be in sync with my logo, right? So I have the option of using these 3-4 colors, correct? Or I can keep the background as white, correct? Let's say we are using this
this color for our image, right? Then apart from lines and shapes, right, what I'll do is, let us take an image and we will try to make replicate that image over here. See, I have taken this image, which is from Anchorage. Sorry. Right. Let us try to, if we want to make this image, how can that be done? And first and foremost, see, in this image, what you see is the logo is down, right? The logo is placed down. Ideally, the placement of logo should be on the top side, right? Because the first जो नजर पड़ती है किसी की भी top left या top side पे पड़ती है, right? If the logo is down, it somewhere dilutes the attention. And one more thing, I mean, with all due respect, but whatever creatives which we are using currently outsourced, right? Everybody carries too much of information. According to me, अगर कोई creative बना रहे हैं, our purpose is to educate the client or a prospective client. We don't want to come across as pushing for sales in our creatives, right? The creatives which we are making has to add some value to the person who is reading it. It should not come across as a sales pitch, right? Sales pitch directly convey नहीं होना चाहिए, but in a subtle way it should be conveying our expertise, right? हमारा subject matter expertise है, वो convey करना है हमको client, prospective को, correct? So carrying your name, your mobile number, your email ID and your website in each and every image, and plus काफी सारे images में देखता हूँ individual का photograph भी आता है. I think that is the biggest put off in, अगर मैं client के angle से सोचता हूँ तो हर एक image में अगर मेरे को सामने वाले का नाम, एड्रेस, उसका फोटो हर एक इमेज में दिख रहा है, इट इज प्योरली अ सेल्स पिच और दैट इज द बिगेस्ट पुट ऑफ, राइट? जो मैसेज पड़ेगा बाद में, 25%, अगर ये जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस इमेज, 20-25% of the space is taken by my logo, my name, website. I mean, I have put just 3 elements. एट एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये एवरी ग्राफिक में कैरी करना ये रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, दैट वी कैन कैरी, बट not compulsorily our name should come on each and every graphic. So that is the reason, since some time I have stopped even using Masterstroke and Anchorage images on my social media platform. So ideal thing is कि सिर्फ आपका लोगो होना चाहिए इमेज के ऊपर, सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा तो वो डाइल्यूट कर देगा, कुछ टाइम पब्लिक देखेगी, उसके बाद वो देखना भी बंद कर देगी, बिकॉज ईच एंड एवरी इमेज इज कमिंग आउट एज योर सेल्स पिच. इट शुड नॉट बी अ सेल्स पिच, इट शुड बी इंफॉर्मेशन, उसको कुछ वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए सामने वाले को, करेक्ट? सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड करना चाहिए हमको हर एक इमेज पे पूरा इंफॉर्मेशन हमारा डालना, राइट? और योर लोगो एंड मैक्सिमम योर वेबसाइट, दैट इज मोर देन इनफ. आई मीन, किसी को जरूरत है तो आपके वेबसाइट पे चला जाएगा, आपका नाम उसको इम्पोर्टेंट है, नाम दिखना, और आपका ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए वेबसाइट, वेब पोर्टल का. अगर वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का नाम होना चाहिए, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे बारे में नहीं होना चाहिए. जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैसेज पास ऑन करना है, वो होना चाहिए, राइट? तो लेट अस सी, ये सेम डिजाइन अगर हमको यहाँ पे बनानी है, राइट?
if there is, I mean, if there are any inputs from your end also, you are free to communicate right now also. So if this is an image, I'll do one thing. Photos में आया left. This is the control panel. यहाँ पे जो भी चीज हमको चाहिए, whatever things we want from Canva, everything is available on the left bar, right? So design में you get templates, ready-made templates over here. You can choose from hundreds of templates, right? But ideal way to create a design is एक simple खुद का template create कीजिए and use it. I mean, for example, I'll show what I do from my end. I have a certain template ready. What I do is उसी टेम्पलेट को रीयूज करता हूँ. नया इमेज या नया क्रिएटिव बनाना है, ये सेम टेम्पलेट है, उसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा. आई विल डिलीट ओल्ड डेटा फ्रॉम इट and put a new whatever new information which I want, I will use that only, right? So अलग अलग ग्राफिक कंटिन्यूटी जो हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल्स में भी देखा, तो यूज मेक अ सिंपल टेम्पलेट वट एवर यू वांट, राइट? क्या इंफॉर्मेशन जो हमको कैरी करना है इंपॉर्टेंट है, राइट? टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपलसरी है, राइट? तो हमको कैरी करना. एंड इसका टेक्स्ट साइज वी कैन कीप स्मॉल. एंड अनदर थिंग इज फॉन्ट. हमारा जो फॉन्ट है, वट एवर फॉन्ट यू वॉन्ट टू यूज, कीप अ सेम फॉन्ट इन ऑल द क्रिएटिव्स. हर एक उसमें अलग अलग फॉन्ट्स रखना जरूरी नहीं है. हैव अ सेम सिमिलर फॉन्ट, विच एवर फॉन्ट यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगता है, या आपके लोगो में कोई फॉन्ट है, तो दैट फॉन्ट हैज टू बी सेम ऑन ईच एंड एवरी क्रिएटिव. जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट का साइज डिफरेंट हो सकता है, बट फॉन्ट सेम होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो हम लोग बाकी के बाहर के इमेजेस लेते हैं, किसी में भी फॉन्ट का सिमेट्री नहीं होता है. हमारे इमेज का आई मीन लोगो का फॉन्ट अलग है, यहाँ पे नीचे इमेज में अलग, यहाँ पे नेम में अलग फॉन्ट है, यहाँ पे अलग फॉन्ट है. तीन चार अलग अलग फॉन्ट टाइप एक ही क्रिएटिव पे दिखते हैं, वो बहुत खराब दिखता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस दिस ओवर हियर, करेक्ट? और एक टेक्स्ट मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा हूँ, तो आई ऑल्सो हैव टू राइट द डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट? वो भी डालना है. तो आई जस्ट, अगर एक टेक्स्ट मैंने बना लिया है, तो आई जस्ट हैव टू डुप्लीकेट करना है, तो ये कर लो, या तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ. आई जस्ट कम ओवर हियर, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, वो भी हो जाएगा, राइट? आई टाइप जस्ट so this is my standard disclaimer which I have to carry on most of the creatives. तो इसको कर्सर आई मीन माउस से भी मूव करेंगे, आपको सेंटर अलाइनमेंट ये गाइड कर देगा, राइट? ये सेंटर में लाइन अगर हाईलाइट हुआ, दैट मीन्स दिस टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द सेंटर, करेक्ट? और ये वाले जो टेक्स्ट है, अगर इसको हमको ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, दिस इज जस्ट टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग एक कोई कंडेंस्ड वाला फॉन्ट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई जनरली यूज एसएप कंडेंस्ड, राइट? तो ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हो रहा है, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो भी मेरा फुलफिल हो रहा है, करेक्ट? तो ये दो चीजें हमारे डिस्क्लेमर बॉटम पे आ गया. तो व्हाट आई वांट, सी, I'm just replicating this image just to give you a perspective कि कैसा भी इमेज है, हम लोग अब खुद से ही बना सकते हैं, करेक्ट? सो ओवर हियर देयर इज अ बैकग्राउंड में ये ग्रीन, there is a green band which is going. So let's see how we can put it over here in our image. I go to elements, I will choose, say for example this, okay? This shape I have taken, I'll just expand it over here. Then I have the option of moving it diagonally. This is somewhat similar.
Okay. If I want to change the color of this, I go over here, right? Change the color, this green color. This is from my own form logo template, correct? Now my logo which was placed over here, that has gone behind this. So what will I do? I'll come over here, go to position and select backward for this. So my logo is appearing on front, correct? Now there's an image over here, right? It is placed in this shape, right? This shape is in the element section. I will go to frames, right? In frames, I find this, right? So if I place it over here and I want to insert a photograph, I'll go to photos, right? I'll just type, I mean, ये wedding photograph है, for example. I'll just type Indian wedding, right? वो Indian wedding related कोई भी photographs है, वो यहाँ पे आ गए, right? Now I can use any image which I want, which is suitable over here, correct? यहाँ पे इस तरीके का है, सिमिलर सेम इमेज मिल सकता है या उससे मिलता जुलता कोई मिल सकता है, right? That I can use over here, correct? Whichever is suitable. Any image, say for example I want to use this image, okay? Now again most of it is text heavy, so text का जो भी portion है, you come over here. There are a lot of options in text also. ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये heading का text का format के लिए भी size के हिसाब से ये automatic इन्होंने options दिया हुआ है. Heading है, सब heading है, या जो body main text body में जो डालना है, उसके अलावा there are various different text options over here. If you want, you can use them also. और सिंपल फॉर्मेट वाला कोई भी उठा लीजिए, सब हेडिंग वाला है. आइडियली अगर जो टेक्स्ट है वो ये बॉक्स जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो एक बॉक्स हाईलाइट होता है उसके अंदर अंदर आ जाना चाहिए इफ पॉसिबल, राइट? टेक्स्ट का साइज वी विल शॉर्टन. अगर पूरा मुझे कैपिटल्स में चाहिए तो देर इज डायरेक्टली एन ऑप्शन ओवर हियर, ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, मोर का ऑप्शन, उसमें आई सिलेक्ट अपर केस, तो ये पूरा ऑटोमेटिक अपर केस हो जाएगा. उसको डीसिलेक्ट कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा, राइट? सो ओवर हियर इफ इट इज रिटन इन एन अपर केस, आई जस्ट नाउ टाइप नाउ ओवर हियर. अगर ये टेक्स्ट ज्यादा है तो आई ट्राई एंड एडजस्ट इट विथ इधर रिड्यूसिंग द फॉन्ट साइज, और थोड़ा सा या तो इसको इमेज को वो बॉक्स जो है स्टिपुलेटेड बॉक्स उससे थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगा, सो दैट इट कैन फिट इनटू 2 लाइन्स, करेक्ट? एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी जो डिफरेंशिएट करना था, राइट, कॉन्ट्रास्ट करना था या हाईलाइट करना था मुझे, तो आई कैन हाईलाइट. फॉर एग्जांपल ये इमेज में देखेंगे ना, जो हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल्स में देख रहे थे, राइट, आपको स्टैंड आउट करना है, राइट, कुछ चीजें. ये तो ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें इसको
वेल्थ क्रिएशन को, कितना वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, राइट? ये दिखा, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मंथली एसआईपी पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, एंड अल्टीमेट गोल क्या है, कितना वेल्थ क्रिएट किया। तो मुझे वो हाईलाइट करना है, तो उसके लिए बॉक्स को कलर अलग कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली अटेंशन यहाँ पे चला जाता है, करेक्ट? एंड विद इन द टेक्स्ट ऑल्सो, इफ आई वांट टू हाईलाइट सर्टन पार्ट्स, राइट, वन एसआईपी फॉर द फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे जस्ट इफ यू कैन सी, ये जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको कलर हाईलाइट कर दिया, राइट? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, राइट? कलर कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे भी कलर कॉन्ट्रास्ट में यूज किया हुआ है, करेक्ट? तो सेम चीज अगर मुझे यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, जस्ट आई सिलेक्ट द पोर्शन विच आई वांट टू हाईलाइट, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कलर, टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, आई विल चूज फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑरेंज कलर डालना है तो ऑरेंज डालूंगा, अदरवाइज आई यूज अ माई ओन लोगो का टेम्पलेट कलर टू हाईलाइट, करेक्ट? टू हाईलाइट having a grand one SIP, having a grand wedding, right? I'll just select the text, I'll choose the color, okay, grand heading, grand wedding for your son or daughter को highlight किया हुआ है. Then the last portion is, okay, adding these four elements, right? For that, whatever you want to elements you want to put, you get it at one place, right? Shapes हो गया. Over here in options, if we want to have a look, elements में there are lines, shapes, there are graphics, right? अगर wedding की, ये wedding के फोटो के जगह पे if you want to include this kind of a thing, that is also possible. I mean उसको improvise करना है, फोटो के जगह पे I just delete this, I put this, तो ये और भी हाईलाइट ज्यादा अच्छा से हो रहा है, राइट? इफ यू सी, इसमें और अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहा है, करेक्ट? वेडिंग, यू नो, इसमें मैजिक रिकमेंडेशन, अगर मैंने एक कोई इमेज चूज किया, मुझे पसंद आया, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैजिक रिकमेंडेशंस दिखाता है, सिमिलर टाइप के और भी ऑप्शंस दिखाएगा, राइट? विच एवर you want best image which you want to choose or graphic which you want to choose, you can choose it from here, correct? So there are various options for improvising, correct? So if we want to add these four elements, it is very simple. Just I go to the elements in shapes and sizes, I find this one, just resize it, there are 4 boxes, I'll just size, I mean एक size उसको ठीक करके just copy and paste. यहाँ पे drag and drop भी काम आता है, copy paste भी काम आता है, right? तो it is very easy. अगर एक टेम्पलेट हमने बना लिया है, उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना इज वेरी इजी, राइट? और प्लेसमेंट भी करना है, तो सी यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक ये अलाइनमेंट दिखा रहा है, ऊपर वाले के साथ भी अलाइंड है ये वाला, और जो साइड पे है उसके साथ भी अलाइनमेंट है, राइट? स्पेसिंग भी ऑटोमेटिकली ये हाई शो कर रहा है, तो इट इज वेरी इजी टू यू नो कहाँ पे प्लेस करना है, वेदर इट इज अलाइनिंग विद द रेस्ट ऑफ द इमेज, स्पेसिंग वगैरह क्या है, ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। आई एम जस्ट ड्रैगिंग इट एंड प्लेसिंग, सी यहाँ पे आउट ऑफ प्लेस है, राइट? अब मैं आई विल स्लोली टेक इट अपवर्ड्स, तो ये इस बाजू वाले इमेज के साथ अलाइन हो गया, और ये ऊपर वाले के साथ भी अलाइन हो गया अभी यहाँ पे, करेक्ट? Dipesh, to replicate that box, to make it, you copy it and bring it down again, what did you do? कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, Okay. तो दैट इज वन वे, कीबोर्ड से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आई क्लिक्ड ऑन दिस वन इज अपीयरिंग, राइट? ये ऊपर आ रहा है, तो डुप्लीकेट, इसको पे क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया यहाँ पे, राइट? और डिलीट हाँ, करने के ठीक। लिए डिलीट हो गया ये। Okay. So most of the times copy paste will work in this, right? So this is even more simple than your PowerPoint, okay? तो अब कलर मुझे चेंज करना है, कलर हाईलाइट करना है, तो बाकी के सारे ऑरेंज है, एक ग्रीन है, तो अगर मैं मेरे कलर पैलेट के उसमें भी देखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आई कीप 3 ब्लूज एंड आई कीप 1 ग्रीन, ठीक है? तो वो मेरे कलर पैलेट के, मीन यहाँ पे डिफरेंट कलर पैलेट है, राइट? मेरा लोगो के साथ अलाइन करना है, तो आई विल यूज माय लोगो कलर्स ओनली,
विद इन हाईलाइटिंग आई विल यूज अ डिफरेंट, राइट? ये 3 ब्लू यूज किए तो ऑटोमेटिकली ये चौथा वाला ग्रीन विल गेट हाईलाइटेड, राइट? देयर आर 2 ऑप्शंस, आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, बट प्रॉब्लम इज कि अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ी रखनी है तो ये उसके फॉन्ट के हिसाब से ये इमेज भी बड़ा होता जाएगा, ये टेक्स्ट जो है वो भी बड़ा होता जाएगा। इफ इट इज सफिशिएंट इनफ देन फाइन। या फॉन्ट का कलर भी इजीली चेंज हो सकता है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ डार्क जो फॉन्ट, अगर डार्क बैकग्राउंड है तो उसमें फॉन्ट का कलर व्हाइट रखना है, राइट? मंथली SIP। So whatever, I'm not inserting all the text over here, right? So with this, see, for example, I will see ये इमेज, ठीक है, इसमें काफी सारा ये अलग, सी फॉर एग्जांपल माय लोगो इज डिफरेंट कलर, ये एंकर एज, दिस इज एंकर एज इमेज, करेक्ट? So my logo color is looking out of place is in this image, correct? If you see the image which we have made, the logo and the content is looking in sync, correct? If I can have any feedback from you, ये दोनों इमेज में कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? कलर, Definitely the graphical one is looking nice, this one. दिस वन इज राइट, क्योंकि कलर मेरे लोगो के कलर के साथ में मैंने अलाइन किया है सब कुछ, करेक्ट? द इंफॉर्मेशन वही है, राइट? मेरा लोगो का कलर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लू, 2 डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रे है, जबकि पूरे इमेज में कहीं भी वो चीज यूज ही नहीं हुआ है, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम विथ टेकिंग आउटसोर्स इमेजेस। वी आर नॉट एबल टू गेट इट कस्टमाइज्ड एज पर आवर लोगोस कलर, राइट? अब जो कलर पैलेट है, और प्रॉब्लम इनमें ये है कि whatever MCS के इमेजेस भी ले लो, NJ के या मास्टर स्ट्रोक एंड एवरीथिंग, दे यूज डिफरेंट कलर पैलेट्स इन ईच एंड एवरी इमेज। तो जो सिंक है वो हमारे लोगों के साथ बैठता ही नहीं है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर ब्रांड आइडेंटिटी, दैट इज नॉट सॉल्विंग आवर पर्पस। ओनली थिंग इज के यू आर गेटिंग इट रेडीमेड, दैट इज फाइन, बट जो विजुअल अपील क्रिएट करना चाहिए, जो आइडेंटिटी, जो यूनिकनेस आपके ब्रांड को देना चाहिए, it is not fulfilling that purpose, correct? So this is simple, right? Any image, see, from my experience, what I have been using Canva since a long time, any image if you see across social media, that can be easily made from Canva, right? Just अगर template बना हुआ है तो 5-10 मिनट का काम है, anything and everything can be made, and प्लस हमारे कलर को सूट करते हुए, राइट? हमारे कलर पैलेट के हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से, एंड देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन ऑल्सो, करेक्ट? सो दिस इज हाउ, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट फिल्ड ऑल द थिंग्स, बट ये एक अगर इमेज हमको ठीक लग रहा है, नाउ वी वांट टू एक्सपोर्ट इट, राइट? सेव करना है इसको सोशल मीडिया यूसेज में। So one more thing I would want to highlight is कि I am not at all using Canva to its full potential. इसमें काफी कुछ है। From here itself we can directly post onto our social media handles, वो भी इसमें ऑप्शन है। You are on mute. I'm sorry. Hello, am I audible? Yes, yes. Yeah. So there are multiple options, right? So I have the option of directly posting onto my social media handles from here itself, Facebook story, LinkedIn profile, LinkedIn पेज यानी कि जो मेरा कंपनी का पेज है उस पे डाल सकता हूँ, या तो मेरे पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल पे, ऑन ए फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पेज, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे यहीं से पोस्ट कर सकते हैं। या ये एक पेड वर्जन है जहाँ पे यू कैन शेड्यूल योर पोस्ट, एडवांस में बना के रखे हैं कौन से दिन पे कितने टाइम पे ये पोस्ट होना चाहिए, कौन से सोशल मीडिया हैंडल पे, दैट टू यू कैन customize it over here. Automated posting भी possible है, right? So this features I have not yet started using. So now for example you made an image, you want to download it, right? Ideally image जो भी हम लोग download करते हैं, that has to be in PNG format. That is the most clear, right? JPG images are slightly low in quality. Best
best quality of image, PNG should be there. Download करने के लिए भी over here also you get PDF format में भी download कर सकते हैं. अगर इसमें कुछ graphics डाला, for example if we put some graphics, इसी को यही पोस्ट को मैं वीडियो पोस्ट की तरह या शॉर्ट 10 सेकेंड वीडियो 30 सेकेंड वीडियो के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. हाउ आई कैन डू दैट इज, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया, देयर इज एन ऑप्शन एनिमेट, राइट. एनिमेट के ऑप्शन में यू हैव वेरियस ऑप्शन. टेक्स्ट आपका किस तरीके से आएगा, देयर आर सी वेरियस ऑप्शंस. राइटिंग टाइप करके आएगा एक एक लेटर, करेक्ट. सो ये अगर मैं करता हूँ ईच एंड एवरी चीज को, आई कैन कस्टमाइज इट. उसका स्पीड कितना होगा, ऑन एंटर टाइप करके आएगा, ऑन एग्जिट जाएगा, राइट. पर ये इमेज नहीं GIF बनेगा ना? हाँ, अगर मैं उसको एनिमेशन डालता हूँ तो वो या तो GIF बनेगा या वो जो वीडियो फॉर्मेट आता है MP4 वो बनेगा. अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट में करना है तो आई विल एक्सपोर्ट इट टू PNG. जस्ट आई एम टेलिंग यू ऑप्शन, यानी कोई एक इमेज बनाया है उसको आपको एक ऑप्शन है ये इमेज फॉर्मेट में डाउनलोड करो. इफ यू वांट सेम इमेज को आपको ग्राफिक विजुअल वीडियो की तरह या GIF की तरह या एक एनिमेटेड वीडियो की तरह डाउनलोड करना है तो देयर आर ऑप्शंस फॉर दैट आल्सो, राइट. यहाँ पे एक एक वर्ड टाइप होके आ रहा है एंड यहाँ पे एक एक कैरेक्टर टाइप होके आ रहा है, राइट. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन विच यू कैन एनिमेट अ सिंपल इमेज. दो चीजें हैं, वीडियो अट्रैक्ट्स मोर आईबॉल्स, राइट. वीडियो में एंगेजमेंट ज्यादा आता है. टेक्स्ट इमेज के आई मीन नॉर्मल प्लेन इमेज के कंपैरिजन में वीडियोस गेट अ लॉट ऑफ मोर eyeballs. So you can utilize it to your advantage that way, right. अगर मैं डाउनलोड करना है तो I'll go to this option share, right. डाउनलोड, I'll click on download. अगर मैंने एनिमेशन डाला है तो बाय डिफॉल्ट इधर MP4 कैटेगरी पे आ जाता है, राइट. सी ओवर हियर MP4. और ये GIF का भी इधर ऑप्शन है. डायरेक्टली GIF फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या तो MP4 में करोगे. लेट अस जस्ट डाउनलोड PNG फाइल ओवर हियर, राइट. और यहाँ पे मैंने 2 पेजेस है तो मुझे कौन सा पेज डाउनलोड करना है उसका भी ऑप्शन यहीं से आ जाता है. वेदर आई वांट टू डाउनलोड ऑल पेजेस और जस्ट वन पर्टिकुलर पेज, करेक्ट. आई क्लिक ओवर हियर. और इसमें भी काफी सारी चीजें हैं, राइट. कंप्रेस, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए. अगर लोगो बनाया है तो जैसे फॉर एग्जांपल आई मेड दिस टीम लीप लोगो ऑन कैनवा इटसेल्फ और उसका ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल डाउनलोड करना था तो आई क्लिक ऑन ओवर ट्रांसपेरेंट इमेज. राइट नाउ वी डोंट वांट अ ट्रांसपेरेंट इमेज, राइट. I'll download this page. Done. Download. So the pop-up will come. I'll just save it on my desktop. Is my entire screen visible or just Canva is visible? No, entire screen is. Okay, fine. So now Only Canva. one second. नहीं, टूल बार भी तो दिख रहा है, ऊपर का लेफ्ट साइड का दिख रहा है. Just a second. I've just opened this image. Is this image visible now? No. No? Okay, one second. I'll share my entire screen. Now is it visible? Yes. So this is now the image which we have made, correct? This is in a PNG format, right? And plus, if we want to, for example, if you want to send it, if you are forwarding it to yourself on WhatsApp, so WhatsApp पे generally document file करके डालेंगे तो image clarity will be maintained. That image pixels will be maintained in the best format. So if you want to post it on social media, आप अपने WhatsApp पे डाल रहे हैं और फिर वहां से डाउनलोड करके दूसरे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो rather than sending it as an image file, I'll just share it over here. My WhatsApp is not open over here, but WhatsApp में जो document sharing option है, वो document sharing option में जाके we can share it as a document. So from there, then on from your mobile, if you want to post, you can post it with a clear, good image, good quality image, right? So this is
आई मीन देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इसमें। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे काफी ओवरले वगैरह करना है, आई जस्ट शो यू व्हाट टेम्पलेट्स आई हैव डन, वहाँ पे क्या क्या ओवरले वगैरह यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज विच आई हैड मेड, ठीक है, ये एक दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट विच आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ। ओके, योर MP registered mutual fund distributor is coming over here. The logo is in the front, middle, right? Then the website name over here, and this again, संदीप सर, ये आपके ग्राफिक में से ये मैंने लिया था, करो SIP बनो करोड़पति, तो दैट आई पेस्ट इट ओवर हियर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, आई मीन इंफॉर्मेशन हैवी ज्यादा नहीं रख के, इमेज और शॉर्ट मैसेज से दिखाएंगे। और इसमें ओवरले, फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ये बैकग्राउंड में ग्रे कलर के डॉट्स आ रहे हैं, आई मीन रेदर देन द होल इमेज लुकिंग प्लेन, राइट, रेदर देन द होल इमेज लुकिंग प्लेन, बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ उसको देना है। तो आई हैव गिवन दिस, ये दिख रहा है, नाउ दिस इज हाईलाइटेड, राइट। ओवर हियर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेंड इट टू पोजीशन में बैक साइड पे डाला है। अगर फ्रंट फॉरवर्ड पे करूंगा, टू द फ्रंट करूंगा, तो सी दिस इज, ये जो इमेज है मेरा उसके ऊपर आ रहा है, बट आई वांट दिस टू बी प्लेस्ड इनटू द बैकग्राउंड, ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए, तो इसको टू बैक डाल दिया, राइट। ये मेरे टेम्पलेट का बैकग्राउंड है, इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, जो भी वट एवर आई पुट और ओवर इट, दिस विल बी बैकग्राउंड में दिखेगा ये क्लियर। एंड देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, आई मीन तो आइडियली कोई भी ग्राफिक वगैरह बनाते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मिनिमलिज्म रहेगा, आई मीन मिनिमम थिंग्स, राइट। ये लोगो कैरी करना है, वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा आपके वेबसाइट का नाम कैरी करना है, और जो स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर है, राइट, वो चीजें कैरी करनी है। तो यू कैन प्लेस इट इन सच अ वे दैट वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, आंखों में नहीं आ रहा है ज्यादा, करेक्ट। जो MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो जो कैरी करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज, जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो छोटा सा या तो साइड पे कहीं पे भी डाल सकते हैं उसको, राइट। ओवर हियर फॉर एग्जांपल इन दिस, यहाँ पे राइट साइड पे डाल दिया, तो वो दिस इज नॉट अ हाईलाइटिंग, आई मीन मेरा स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये टेक्स्ट हैवी इमेज था, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको साइड पे राइट अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट में कर दिया, तो एनीथिंग इज फाइन ओवर हियर, यू कैन प्ले अराउंड, आई मीन इसमें जितना प्ले करना है, आई मीन टेक्स्ट, see for example this image which I made, this image which I made was made using this, ये टेम्पलेट यूज किया था, उससे ये इमेज बनाया है, correct। so any template which you want, you can copy that template, sorry this was the template I think, yeah this is the template which I used, right, this was the original template, this was the template, right, I used that template to make this image, correct। so ready-made templates है मेरे पास, मेरा टेक्स्ट मैटर जो भी है मेरे पास रेडी है, आई जस्ट रिप्लेस इट, मैंने इसी में कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, करेक्ट। उसके कलर, वट एवर कलर आई वॉन्ट, आई विल यूज इट एज पर माई लोगो। तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसमें इम्प्रोवाइज करना है, काफी चीजें कर सकते हैं। देन वीडियो, अगर वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक अ वीडियो, जस्ट so if you want to make a video also, for example, right, यहाँ पे वीडियो ऐड करने का भी ऑप्शन है, देर आर रेडीमेड वीडियोस भी है, या अपने आपके पास कोई वीडियो है तो वो भी कर सकते हैं, या तो खुद का रिकॉर्ड करना है, खुद को रिकॉर्ड करना है, तो वो ऑप्शन भी पॉसिबल है, राइट। यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वीडियो ओवर हियर एंड प्लेस इट ओवर हियर, करेक्ट। देन वीडियो एडिटिंग के लिए भी काफी सारे ऑप्शंस है, और आपका जो, अगर फॉर एग्जांपल ये इसको मैं एनिमेशन में क्रिएट करता हूँ, आई वांट टू ऐड ऑडियो टू इट, तो ऑडियो के भी काफी सारे एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है, बाहर से मुझे कोई ऑडियो डालना है,
right? So I go to uploads. If I have some audio already with me, so either I can record myself or यहाँ पे videos मेरे whatever videos I want to put, I can put it over here. Audio content मुझे डालना है, royalty free music भी होता है, और you can download many royalty free audio or video from YouTube also. You can use it over here. Having a paid version of this helps के यहाँ पे जो भी है वो royalty free images and royalty free audio मिल जाता है. बट अगर नहीं भी है, फ्री वर्जन भी यूज करते हैं, तो काफी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ से मिल सकती है. और बाहर से डालना है तो अपलोड सेक्शन में गए, अपलोड फाइल में जाके जहाँ पे भी अपने यहाँ पे कुछ भी सेव किया हुआ है आपके डेस्कटॉप पे, वी कैन यूटिलाइज ओवर हियर. एंड देन फॉर एग्जांपल से इसमें अगर हम लोगों को ये डालना है, आई जस्ट एड इट ओवर हियर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. देन आई हैव टू उसके साथ में अलाइन करना पड़ेगा, वीडियो के साथ में ऑडियो को अलाइन करना है. तो इफ आई से फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रीव्यू करूंगा, दिस इज हाउ इट विल शो. राइट? तो एनी वीडियो, आई मीन अगर उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये सारे ईच एंड एवरी टेक्स्ट, ईच एंड एवरी वर्ड को मैं एनिमेशन के थ्रू लेके आ सकता हूँ, और वो जैसे चलता रहेगा टेक्स्ट, साथ में वो ऑडियो भी चलता रहेगा. तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट विल गिव दिस इमेज या जो पोस्ट है सोशल मीडिया पे डालेंगे उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल average attention span on LinkedIn or Facebook or any social media platform is 3 seconds to 8 seconds, minimum 3 and maximum 8 seconds. तो 3 से 8 सेकंड के बीच में हमारा मैसेज सामने वाले ने रीड करके समझ लेना चाहिए. If that is not possible through an image, then the purpose is diluted, right? So उसका attention grab करना है तो ग्राफिक अच्छा होना चाहिए, लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, अपने लोगों के साथ कलर अलाइनमेंट सारी चीजें होनी चाहिए. और वीडियो पोस्ट करेंगे, जैसे 10 सेकंड का वीडियो अगर ये डाल दिया, इसको मैंने ये चीज को हमने 10 सेकंड का वीडियो बना के डाल दिया, तो दैट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट देन अ स्टैटिक इमेज. सिर्फ एक स्टैटिक इमेज से अच्छा वीडियो कंटेंट. एंड देन वीडियो कंटेंट को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल सकते हैं, इंस्टा फेसबुक स्टोरीज पे भी डाल सकते हैं. तो दैट ऑल्सो एड्स टू द आईबॉल्स. तो ज्यादा व्यूअरशिप उसमें ज्यादा मिलेगा. राइट? ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. I mean, in 1 hour, whatever I could cover, that I've tried to cover. But इसमें और भी ज्यादा possibilities है. Whatever, I mean, any design which you see on internet or any social media platform, we can replicate it in a customized way over here. So, I mean, 1 hour is already up. Any queries or any questions anybody has? जो आपने म्यूजिक अपलोड करने का दिखाया अभी, तो हाँ जी. उसमें does that have any kind of length? Do we need to trim it or something? Everything is possible. Say for example, I want to create this as a 10-second video. Okay, I want to create this as a 10-second video. यहाँ पे सिर्फ ये एनिमेशन का टाइम भी है. See over here, edit timing. So I can extend it. Say for example 10 second का कर दिया. Right? Apply to all 3 pages नहीं करना है. Apply to only 1 page. I'll just delete this. Now just let's play it. वो 10 seconds में बंद हो जाएगा ये. राइट? ये 10 seconds का हो गया. इसको मेरे को कितना भी एक्सटेंड करना है, कम करना है, आई कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. 7 seconds वो भी हो जाएगा यहीं से. फिर 7 seconds में बंद हो जाएगा. म्यूजिक को आप कैसे ट्रिम करोगे? ये ऑटोमेटिक ट्रिम हो रहा है, मुझे करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी है, देखिए फॉर एग्जांपल आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस. यहाँ पे जो म्यूजिक का आइकॉन ये दिख रहा है ना, जो मैंने म्यूजिक फाइल यूज किया है, वो फाइल पे क्लिक करूंगा, ये पूरा टाइमलाइन दिख गया. ये 2 minute 47 seconds का ऑडियो क्लिप है, उसको मैं सिर्फ 7 seconds यूज कर रहा हूँ. मुझे एक्सटेंड करना है और आई कैन यूज इट. एंड इस समझो फॉर एग्जांपल 2 minute 47 seconds का ऑडियो क्लिप है, उसका सर्टन पोर्शन, बीच में का कोई पोर्शन मुझे यूज करना है जो मुझे अच्छा लग रहा है,
So that is also possible. Are you able to hear the audio also while I'm playing this? Very faint or practically not there. Yeah. Acha, okay, let me try. दीपेश, हम लोग इसमें जैसे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वैसे यहाँ पे बन सकता है क्या? Yes, yes, yes. मैंने जो प्रेजेंट किया था वो यहीं से था. This is the presentation which I made. This is the presentation which I had done today, right? ये presentation अभी for example presentation बनाना है हमको, तो जो होम पेज है वहां पे आ गए हम लोग, right? यहाँ पे भी टेम्पलेट में भी टाइप कर दिया प्रेजेंटेशन. तो ये प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट आ जाएगा. ब्लैंक क्रिएट करना है तो ब्लैंक, राइट? या तो रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी, उसको यूज कर लो, या तो क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, राइट? दिस इज अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अभी यहाँ पे से टेम्पलेट अपने को चाहिए. इफ यू वांट सम टेम्पलेट्स, गुड बैकग्राउंड, गुड लेआउट्स, it will show up over here. If you want specific something, you can type it over here, right? For example, graphic design, या for example let me check investor awareness के लिए कुछ है क्या? So for example कोई template, you know, if some template, you like some template and you want to use it, तो ये 15 पेज का टेम्पलेट एक आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाता है. Okay, if you for example you apply it over here, all 15 pages will be replicated over here. Now if you want to customize it, ठीक है, अपने कलर के हिसाब से, अपने यू नो बैकग्राउंड, यहाँ पे आपका लोगो रिप्लेस कर देंगे, राइट? you'll replace this logo with your own logo. Right, we'll put our own logo. And the rest of the color combination, if we want with our own logo, for that you have अगर एक ही शॉट में ये सारा, फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज दिस येलो, राइट? दिस येलो टू आवर ग्रीन कलर, द लोगो जो हमारे लोगो में ग्रीन कलर है उससे चेंज करना है. आई जस्ट सिलेक्ट वन एलिमेंट ओवर हियर, राइट? ये एलिमेंट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ. आई गो टू द कलर एंड आई सिलेक्ट आवर ग्रीन ओवर हियर. इफ यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है नीचे ऑप्शन चेंज ऑल, राइट? जितने भी ये टेम्पलेट के अंदर येलो कलर है उसको ये ग्रीन में करना है. तो एट द क्लिक ऑफ वन बटन, everything which is yellow, every element which is yellow in color will change to my logo's color of green, right? I applied it over here. ये हो गया सारे जगह पे. कहीं पे भी मुझे अभी डबल चेंज करने की जरूरत नहीं है. सारा जितना भी ग्रीन येलो था वो सॉरी मेरे टेम्पलेट के कलर में हो गया. एंड दिस ब्लू एलिमेंट, आई क्लिक इट ओवर हियर, आई वांट इट टू बी in my logo's blue color. I click this blue color from my logo over here and I click on change all, right? ये सब जगह पे हो गया. This change is reflected in everywhere, right? So just by 2 clicks the entire template I have customized it to my logo colors, right? अभी इसमें से जो पोर्शन यूज करना है we can use it. यहाँ पे भी चेंजेस करना है टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, we can do it and we can use this template. इजी है.
हाँ लग तो रहा है, अभी करने से पता चलेगा। इट इज आप वेरी कर इजी, रहे हो तो इजी लग रहा है। राइट, इट इज क्वाइट इजी। अगर इस जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे ना, काफी सारी चीजें इसमें आसान लगेंगी। मोस्ट ऑफ इट इज कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लोगो, मुझे समझो मेरा लोगो इस यहाँ पे इधर प्लेसमेंट है, ठीक है, ऑन एवरी पेज। फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरी पेज आई वांट माय लोगो टू बी प्लेस समवेयर, ठीक है, जहाँ पे भी हर एक पेज पे मुझे समझो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लोगो है, सेकंड पेज पे मैं फॉर एग्जांपल आई जस्ट कॉपीड, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया है मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पे जहाँ था प्लेसमेंट एग्जैक्टली उस जगह पे ये लोगो आया। बट आई वांट टू मूव इट ओवर हियर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, मुझे फॉर एग्जांपल मेरा लोगो नीचे की तरफ चाहिए, राइट, और उसका साइज भी अगर रीसाइज करना है, आई वांट टू मेक इट स्लाइटली शॉर्टर, ठीक है, एंड आई प्लेस्ड इट ओवर हियर। अब मुझे आई जस्ट कॉपी इट ओवर फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी, राइट, I go to the other slide, I just click on this slide and control V। जहाँ पे मैंने प्लेस ऊपर किया था एग्जैक्टली उसी प्लेस पे इस स्लाइड पे वो पेस्ट हो गया। तो ऑल आई हैव टू डू इज कंट्रोल V ऑन ऑल द स्लाइड, वो लोगो मेरा उसी जगह पे आ जाएगा। आई डोंट हैव टू मूव इट, वो अलाइनमेंट भी मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसका रीसाइजिंग अभी आई एम जस्ट प्लेसिंग इट ओवर हियर जस्ट टू शो यू। फिर इसको हम लोग अभी फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो लोगो का प्लेसमेंट कैसा है। कोई भी स्लाइड अगर मूव करेगा ना, तो वो जो लोगो सेकंड स्लाइड से मेरा आएगा जो वही जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल स्लाइड मूव कर रहा है तो मेरा लोगो मूव नहीं करेगा उस प्लेस में से। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। अब ये लोगो यहाँ पे आया, नेक्स्ट स्लाइड में जस्ट चेक करिएगा, आड़ा टेढ़ा कहीं भी हिलेगा नहीं, लोगो मेरा वहीं का वहीं रहेगा, राइट। स्लाइड चेंज हो रहा है, लोगो और पूरा टेम्पलेट वही का वही है, करेक्ट, राइट। तो दिस इज हाउ आई मीन वो सिमिलैरिटी जो हर एक कंटिन्यूटी आना चाहिए फॉर्मेट में स्लाइड्स में, तो दैट विल बी मेंटेन्ड। तो देयर आर फ्री टेम्पलेट्स भी काफी सारे हैं, एंड का पेड वर्जन प्रीवियसली यूज्ड टू बी अराउंड 10,000 प्लस टैक्सेस, बट राइट नाउ आई थिंक लास्ट ईयर से या 2 साल से इन्होंने 4,000 प्लस या 4,500 प्लस टैक्सेस का इसका पेड वर्जन है। बट इट इज वर्थ इट, क्योंकि हम लोग वट एवर इमेजेस वी वांट वी कैन कस्टमाइज इट एज पर आवर ब्रांडिंग, rather देन जो यूज करते हैं हम लोग दूसरा अलग अलग इमेजेस जो यूज करते हैं विच इज completely out of the place। I'll just show you for an example। I'll go to my Instagram page, it is open over here, yeah, is this page visible? Yes. Yeah, so this is my this growth quest जो मेरा कंपनी का पेज है उसका इंस्टाग्राम पेज है। तो आई स्टार्टेड इट इन द ईयर आई थिंक 2018, ठीक है। तो ये कपल ऑफ 3-4 इमेजेस जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर करके, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम कैनवा इन दिस, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ना कि दिस इज वेयर आई जो डिजाइन सिमिलैरिटी चाहिए, हर एक इमेज थोड़ा इन सिंक होना चाहिए, सिमिलर दिखना चाहिए, लुक एंड फील सेम होना चाहिए, लोगो और सब कुछ सेम होना चाहिए, डिजाइन का थीम सेम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई हैड पोस्टेड अर्लियर, जो कैनवा से बनाया हुआ है एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच यू सी ओवर हियर इज कैनवा मेड, ठीक है। तो just see the look and feel of the Instagram timeline, right? Similarity दिख रहा है, continuity दिख रहा है, right? So you know it is identifiable, brand logo similar जगह पे positioning है, right? Text heavy है, although I'm now for example over here if you see एक ही image को I had broken down into 12 other different you know small images। ये पूरा एक single image was broken down into 12 different images and उसका एक अलग से पोस्ट हुआ है ये, राइट। ये पूरा एक कंटिन्यूटी दिखता है। वट एवर इंफॉर्मेशन आई वॉन्ट टू कन्वे इट इज इजीली आइडेंटिफाइबल, राइट। एक टेम्पलेट बना दिया है, उसके अंदर बाकी का चीजें चेंज हो रहा है बट टेम्पलेट सेम रह रहा है। तो हियर अगेन टेम्पलेट थोड़ा चेंज किया, एंड आफ्टर दिस ये यहाँ से सब मास्टर स्ट्रोक और एंकर एज के इमेजेस आए। यहाँ तक जो टाइमलाइन देखेंगे कंटिन्यूटी दिख रहा है, ब्रांड लोगो प्लेसमेंट कलर थीम
सब कुछ ब्रांड के हिसाब से है, राइट, ब्रांड लोगो के हिसाब से है। एंड आफ्टर आई स्विच टू यूजिंग आउटसोर्स्ड इमेजेस, फिर उस इंस्टाग्राम टाइमलाइन देख लीजिए। Is this looking more cluttered and disorganized compared to previous posts? Yeah, definitely. Yes. Any honest feedback? Yeah. Everything is out of place, right? कोई color combination का ठिकाना नहीं है, Correct. and वो Now देखने we से भी, see the difference. sorry, हाँ Once we have seen your that other presentation, हाँ then we are feeling that difference. correct. Everything सब out of place है, किसी का भी एक इमेज का दूसरे इमेज के साथ सिंक नहीं है, ताल्लुक नहीं है. right? So this is looking good या ये बेटर लग रहा है यहाँ पे, Definitely ये अच्छा है. राइट। सो आई मीन जितना सिंपल रखेंगे, ऑल्दो दिस इज, आई मीन ये कोई बड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है ऐसा आई एम नॉट क्लेमिंग ये अच्छा है, बट सिमिलर है और लुक एंड फील काफी सारे इमेजेस में सिमिलर दिख रहा है, तो इट इज प्लीजिंग टू द आई, राइट। और देखने के बाद इमीडिएटली क्लिक होता है कि ये दीपेश का कुछ आया शायद. करेक्ट करेक्ट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आपका ब्रांड के साथ आइडेंटिफाइबल रहेगा आपका इमेज, और यहाँ पे और प्लस दूसरा चीज, आई मीन मेरे अलावा 15, 20, 50 लोग और सिमिलर इमेज पोस्ट करते हैं, तो वहां पे मेरा कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं आता है, राइट। सो दैट इज व्हाई हैविंग योर ओन इमेज इन योर ओन टेम्पलेट इज मोर विजुअली अपीलिंग। ये एवरीथिंग इज अबाउट विजुअल अपील, राइट। वो दिखेगा तो इजीली आइडेंटिफाइबल होगा, एंड इजीली इट विल बी एबल टू रिलेट। आई मीन कोई भी एक बार देखता है तो अपने ब्रांड इमेज के साथ रिलेट कर पाता है। अभी जैसे कंटिन्यूटी का था, फॉर एग्जांपल मल्टीपल इमेजेस एक ही पोस्ट में है, या तो लिंक्डइन पे जैसे पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं, तो ये डिजाइन कंटिन्यूटी आ जाती है, राइट। ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर का और नीचे का जो एलिमेंट्स है, एवरीथिंग इज लुकिंग सिमिलर, राइट। Any questions, any feedback? Yeah, I mean, there are many things. I mean, if you start using Canva, you will have certain doubts. So I am open. I mean, anytime you can call me, or we can come online, or I can show you directly on the platform. कहीं पे भी कुछ अटक रहा है, कुछ चीजें ढूंढनी है, कुछ explore करना है, तो I can. I mean, I am happy to help anybody one-to-one also. Thank you for the fantastic offer. I think many of us will take you up on it. No issue. जो आपने बोला कि आप इसको टेम्पलेट आप बना के रखते हो, हाँ. तो उसको आप सेव करके उसी में फिर अलग से जो हाँ, आपको yes. अभी फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू। तो these are the recent templates, जो पुराने मेरे टेम्पलेट्स थे, ये कैनवा में ही आपको मिल जाएगा। ये होम पे आ गया, ठीक है, 1 सेकेंड। ये बाय डिफॉल्ट इसके जो टेम्पलेट्स है वो दिखेंगे, उसके नीचे these are all templates, ये सारे टेम्पलेट्स हैं, रेडीमेड इनके टेम्पलेट्स है। अब फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गो टू माय ओन टेम्पलेट, just a minute. See the older templates which I have already made. These were the initial designs जो मेरे Instagram पे भी देखेंगे, जब स्टार्टिंग में किया था तो ये ऐसा था, and after that ये रहे। तो एक ही टेम्पलेट एक बना दिया, उसके बाद नया इमेज बनाना है तो फॉर एग्जांपल ओवर इन एक में इमेज लोगो ऊपर था, एक में लोगो नीचे था, राइट। तो 2 टेम्पलेट बना दिए। जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, अगर फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज दिस टेम्पलेट, आई जस्ट डुप्लीकेट द पेज, राइट। अगर नया इमेज बनाना है
I just duplicate the page over here. नीचे ये आ गया. अब यहाँ पे I'll edit the text, whatever I want to put. I'll change the text and it is ready. I don't have to do ये outlay अगर बन गया, उसके बाद whatever I want to do, I just copy paste the previous template, text change कर दिया, हो गया. यहाँ पे text change कर दिया, हो गया नया. तो ये से फॉर एग्जांपल जो पूरा टाइमलाइन आपने देखा इंस्टाग्राम का, ये सारे इमेजेस एक ही टेम्पलेट में से बने हुए थे, राइट. ऑल दीज डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हाईलाइट करना है ओवर हियर, तो कलर से डिफरेंशिएट कर दिया उसको. These are all the common images, right? What we want, what market delivers. Anything and everything जो भी visually आपको बाहर कहीं पे भी image दिखता है, everything can be presented in fact better manner in Canva. अभी जैसे multiple एक ही emergency fund के ऊपर multiple 3-4 pages का बनाया है, तो ये see you have this. डाउनलोड करते समय ये तीनों पेजेस एक साथ डाउनलोड कर देंगे, ये तीनों इमेजेस एक साथ डाउनलोड कर देंगे. And currently तो white background वगैरह के लिए right now I am using this template. तो more or less see एक लोगो आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे लोगो आ गया, यहाँ पे एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट, जहाँ पे भी कहीं पे भी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे पास रिटर्न्स दिखा रहे हैं हम लोग कुछ भी, या म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, एसआईपी के बारे में, so this has to be compulsorily carried, right? Mutual fund investment are subject to market risk. और ये यहाँ पे मर्सिडीज का जो टॉपिक निकला था, हॉट डिबेट था, मर्सिडीज का सीईओ ने बोला था कि एसआईपी इज द कंपटीशन टू मर्सिडीज, राइट. वो ये उस टाइम पे इमेज एक बनाई थी कि हाउ यू कैन प्लान योर ओन मर्सिडीज विद एसआईपी. तो करंट कॉस्ट, टाइम फ्रेम 5 साल में लेनी है, 7 साल में लेनी है, 8 साल. सो ये एक एक बॉक्स इधर डाला हुआ है, राइट. आई जस्ट मेड वन टेम्पलेट, ये बॉक्स 4 बॉक्स यहाँ पे डाल दिए, उसके बाद ये चारों को कॉपी करके बाजू में लेके आया, राइट. इसको मैंने सबको ग्रुप किया हुआ है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आई अनग्रुप इट ओवर हियर. 1 सेकंड. There is an option to ungroup. I have grouped all this. तो अनग्रुप कर दूंगा तो एवरी एलिमेंट, आई मीन टेक्स्ट अलग हो जाएगा और ये बॉक्सेस अलग हो जाएंगे. बट यहाँ पे ये दिस लुक्स लाइक, आई मीन वो एक टेबल का फॉर्मेट में दिख रहा है, राइट. एंड आई वांटेड टू हाईलाइट द अमाउंट ऑफ एसआईपी टू नीडेड टू अचीव ईच गोल, तो वो उसका बैकग्राउंड ब्लू कर दिया. तो ये दिस इज हाईलाइटिंग, राइट. ये दो, प्लान योर मर्सिडीज विथ एसआईपी, प्लान योर मर्क विथ एन एसआईपी, तो मर्क एंड एसआईपी को कलर से डिफरेंशिएट कर दिया. And plus your standard disclaimers, right? Assumed inflation, assumed returns, SIP top up, everything is mentioned in here. यहाँ पे if you notice most of these images which I make or generally ideally you should make, वहाँ पे कहीं पे भी आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा you have to carry is your website address या तो brand logo, only that thing is important, and standard disclaimer. ज्यादा इंफॉर्मेशन, सी फ्रैंकली इट इज अ बिग पुट ऑफ. अगर कोई भी कस्टमर के एंगल से देखेंगे, जो हमारे एमसीएस और बाकी जो रेडीमेड टेम्पलेट्स में मिलते हैं बाहर से, उसमें आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड इवन फोटो भी आता है. एमसीएस इमेजेस में भी आई थिंक सो फोटो भी आता है हमारा. दैट इज अ बिग पुट ऑफ एक्चुअली. अगर वो फोटो वाला देखेंगे तो आज से 10 साल पहले इंश्योरेंस एलआईसी वाले जो थे ना, उनका उस तरीके का टेम्पलेट था. तो इट इज कन्वेइंग अ मैसेज ऑफ यू आर पुशिंग फॉर सेल्स. यहाँ पे आइडिया शुड बी कि वी आर एजुकेटिंग द कस्टमर, एजुकेटिंग अ पोटेंशियल क्लाइंट, एंड अगर वंस दे लाइक व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग इट, इधर दे विल फॉलो यू, और नेक्स्ट टाइम कुछ सेम टेम्पलेट में इमेज आपका दिखेगा तो वो मतलब 5-10 सेकंड निकाल के वो पढ़ेंगे, वो इमेज क्या इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे. तो अटेंशन स्पैन एटलीस्ट इज 3 to 8 सेकंड, उसी में अपने को सारा कुछ कन्वे करना है. और वही
आपका जो खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कंपनी का इंफॉर्मेशन, एड्रेस, वो सब कुछ 25% ऑफ द इमेज कंज्यूम कर रहा है. इट इज डाइल्यूटिंग योर ब्रांड आइडेंटिटी एंड कस्टमर को पुश वाला फीलिंग दे रहा है, सेल्स वाला, एंड इट इज पुटिंग ऑफ. आइडियली इट शुड बी, जो मैसेज कन्वे करना है वही होना चाहिए, और बाकी सब कुछ आपका सिर्फ ब्रांड लोगो से कन्वे हो जाना चाहिए. So that is the only thing which one has to look, while designing an image. Dipesh, it was very nice session, very simply explained. I just want to ask one thing. हाँ. कि इसमें हाइपरलिंक डाल सकते हैं क्या? जैसे आपने Yes. बोला कि वेबसाइट डालते हैं, तो वेबसाइट का एक Yes. हाइपरलिंक डाल ये सकते देखो, हैं ये इसमें, देखो, अभी फॉर एग्जांपल ये हाँ. वेबसाइट है. अब इमेज में हाइपरलिंक नहीं आएगा, पहली नहीं बात. आएगा, हाँ, okay. इमेज में नहीं आता है. पीडीएफ वगैरह होगा तो उसमें हाइपरलिंक आता है. अभी फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पे मुझे लिंक डालना है, तो राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, वेबसाइट पे राइट क्लिक किया, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक किया, लिंक आ गया, राइट. यहाँ पे मैं डाल दूंगा लिंक. बट इसको मैं, ये कब यूज होगा, जब अब ये लिंक आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये लिंक आ गया. मैं अगर इस इमेज को इफ आई एक्सपोर्ट इट इन पीडीएफ, तो वो लिंक रहेगा उसमें. बट इमेज में तो बाय डिफॉल्ट वो आता नहीं है. ओके 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 ओके. तो अभी मैं इसको पीएनजी की जगह पे इफ आई डू इट इन अ पीडीएफ, देन वो उस पे लिंक रहेगा. ओके. बट एनी विच वे, सी आपको सी कन्वे क्या करना है, इमेज, जो भी इमेज वगैरह डाल रहे हैं हम लोग, तो इट इज बीइंग पुट ऑन सोशल मीडिया, राइट. या तो फेसबुक पे जा रहा है, इंस्टाग्राम पे जा रहा है, या व्हाट्सएप पे जा रहा है. तो बाकी का जो टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, तो इमेज के साथ हम दूसरा टेक्स्ट भी रखते हैं, करेक्ट. तो वो टेक्स्ट कैप्शन में में, हम, हाँ, वो कैप्शन में रख सकते हम हैं. लोग वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं. एंड प्लस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कॉल टू एक्शन का बटन भी आता है. फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हैं ना, तो यू हैव द ऑप्शन टू इधर कॉल नाउ का बटन डाल दो, तो वो आपको, आपका मोबाइल नंबर जो फेसबुक में डाला हुआ है उस पे कॉल जाएगा, या तो व्हाट्सएप का उस पे कर दोगे, तो डायरेक्टली समवन कैन मैसेज यू ऑन व्हाट्सएप. तो वो Okay. ऑप्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है. तो कोई भी पोस्ट आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालते हो, तो देयर इज अ कॉल टू एक्शन ऑप्शन टू ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन, तो वो डाल दिया करो. Oh, this is a new information. Good. तो Explore. पहले से अवेलेबल है. अब जब Right. फॉर एग्जांपल आप आपके पेज से पोस्ट कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग योर ग्राफिक टू बी पोस्टेड फ्रॉम योर पेज, कंपनी का पेज जो बनाया हुआ है उससे पोस्ट कर रहे हो, तो पोस्ट जब फाइल अपलोड करोगे ना, तो वहीं पे नीचे ऑप्शन आता है कॉल टू एक्शन का बटन, क्या ऐड करना है, कॉल नाउ या व्हाट्सएप या विजिट वेबसाइट. ये तीनों चीज आपको जहाँ पे ऑडियंस को डाइवर्ट करना है, वो तीनों ऑप्शन आप डाल सकते हो. यू कैन लेट योर कस्टमर्स गो टू योर वेबसाइट, और लेट योर कस्टमर्स व्हाट्सएप यू, और डायरेक्ट कॉल यू ऑल्सो. Okay. Okay. Thanks. दीपेश, ये इमेज में वो नीचे जो आपने लिखा ना मेनी थिंग्स, उसका स्पेलिंग करेक्शन कर देना. ओके, श्योर श्योर. ये इमेज बाय द वे पोस्ट नहीं किया था, इसके जगह पे मैंने ये वाला डाला था. तो इवन दिस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी कैसा किया है, ये इमेज था, ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने ऐड किया है. ये टेक्स्ट अगर निकाल दूंगा तो प्लेन इमेज डायरेक्टली यहाँ से मिल गया था, कैनवा से ही एलिमेंट्स में से ये इमेज मिल गया था. तो यू कैन यूटिलाइज इमेजेस एंड उसके ऊपर फिर टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हैं. एनी अदर क्वेरीज, और अगर बाकी कुछ क्वेरीज है तो आई विल बी हैप्पी टू टेक इट ऑफलाइन विद वन टू वन, एनीवन वन टू. मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मैंने कैनवा एक्सप्लोर तो किया है, लेकिन जो आपने आज सिखाया है, that has brought a whole big change in my thinking, because I was struggling with a lot of things. I didn't understand a lot of things. So you made it very simple to understand and implement. Right. So Thank you so much. easiest thing is एक simple template बना लो. आपको जो आपको pleasing लगता है, उसमें सिर्फ कुछ एलिमेंट्स का ध्यान रखना है. एक तो लोगो टॉप लेफ्ट पे हो, या टॉप राइट पे, या टॉप सेंटर पे, 3 जगह पे लोगो रखना है, राइट. आपका जो स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी डिस्क्लेमर्स है, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर,
और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो छोटे फॉन्ट में जो सेबी का गाइडलाइन है 18 फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट का साइज 18 होना चाहिए, राइट। तो वो कंडेंस्ड वाला जो फॉर्मेट है, जो फॉन्ट है, कंडेंस्ड वाले फॉन्ट में 18 का फॉन्ट साइज रख के यू कैन प्लेस इट एट द बॉटम। और बाकी का जो भी है, जो प्लेग्राउंड है, दैट इज द सेंटर पोर्शन। वहां पे आइडियली जो कम टेक्स्ट होना चाहिए, हम जितना हो सके उतना टेक्स्ट हैवी नहीं रखना चाहिए इमेज को, ज्यादा उसको इमेज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो बेटर है। एंड ज्यादा से ज्यादा आपका वेबसाइट का नाम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नाम उस पे, इमेज के ऊपर वेबसाइट से ज्यादा इंफॉर्मेशन और मत दो। जो नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस, ये सारी चीजें देते हैं, इट इज अ बिग पुट ऑफ, वो सेल्स पिच लगता है। तो हमारा काम ये है कि आई मीन वट एवर इमेजेस वी पुट, एक तो कंटिन्यूटी रहना चाहिए। एक टेम्पलेट बन गया ना, तो आपको सिर्फ बीच का टेक्स्ट चेंज करना है, बाकी क्या कोई चीज को हाथ नहीं लगाना है, राइट। तो 2 मिनट का काम है। आपको कहीं कुछ इन्फॉर्म, अभी इतना सारा मैसेजेस आते हैं, इतने सारे ग्रुप्स में है हम लोग, अच्छे अच्छे कोड्स हम लोगों को मिलते हैं, करेक्ट। तो एवरीथिंग, आई मीन फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन इज, मैंने खुद का ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। आई हैव 2 नंबर्स, तो एक व्हाट्सएप नॉर्मल है, एक व्हाट्सएप बिजनेस है। तो मेरा खुद का ही ग्रुप बनाया हुआ है सोशल मीडिया पोस्टिंग। कुछ अच्छा दिखा कहीं पे भी मुझे, कॉपी पेस्ट करके मैंने मेरे ग्रुप पे डाल दिया। शाम को कभी बैठा है, जब भी टाइम मिला, तो वो कॉपी टेक्स्ट कॉपी करके मेरे टेम्पलेट में कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बस हो गया, एक इमेज बन गया। तो उस तरीके से ये सी आइडियली कैसा है, इवन आई एम ए लेजी पर्सन, यू नो, इतने सारा टाइम स्पेंड करने को मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो टेम्पलेट बना हुआ है, तो व्हाट आई डू इज, हफ्ता 10 दिन मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया कंटेंट जो मेरे को अच्छा लगा, एंड फॉर विच आई वांट टू मेक एन इमेज। तो हाफ एन आवर आई विल सिट व्हेन एवर आई एम फ्री, एंड 6 to 8 इमेजेस, 10 इमेजेस आई विल मेक, एंड वो इमेजेस को आई शेयर इट विद, आई मीन जो डॉक्यूमेंट फाइल है मेरे व्हाट्सएप पे, मैं सेंड करके रख देता हूँ। तो आई ऑलवेज व्हेनेवर आई हैव टाइम, डेली मैं एक इमेज अपडेट कर सकता हूँ। ऑफ लेट सिंस लास्ट 1 month आई हैव नॉट बीन रेगुलर, बट उसके पहले आई मेड यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि लिंक्डइन पे पर डे 1 पोस्ट जाना चाहिए। तो उससे एंगेजमेंट अच्छा मिलता है, और जो लिंक्डइन के रैंकिंग्स है, आपका पोस्ट ज्यादा जनों को दिखने लगता है। तो वो सब उनके जो एल्गोरिदम्स वगैरह है, दिन में एक से ज्यादा पोस्ट नहीं जाना चाहिए। ट्विटर में आप दिन में 100 पोस्ट डालो चलेगा, बट लिंक्डइन में दिन में एक से ज्यादा पोस्ट नहीं जाना चाहिए, या वरना उसका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट कम लोगों को दिखाएगा। योर पर्सनल पोस्ट ऑल्सो, योर कंपनी पेज पोस्ट ऑल्सो, दिन में एक पोस्ट डालो, बट वो ज्यादा। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कंटेंट, फॉर आई जस्ट शेयर व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ। अगर कंटेंट बाहर पड़ा है, हमको खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट विच इज फ्रीली अवेलेबल, राइट। और काफी सारे लोग लिंक्डइन पे ऐसे लोगों को फॉलो करो जो हु आर वायरल विद कंटेंट, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है या इन्फ्लुएंसर्स है, राइट। उनको फॉलो करो, उनका जो अच्छा कंटेंट है ना, वो अपने पास स्टोर करके रखो, राइट। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, आई यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट माई ओन कंटेंट, ठीक है। तो मेरे किसी और का कंटेंट एज सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है, राइट। तो टू आई प्रीवियसली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू रीफ्रेम इट माई सेल्फ। उसमें भी टाइम लगता था कि कॉपी पेस्ट नहीं लगना चाहिए, किसी और का प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो वहां पे चैट जीपीटी हेल्पफुल आता है। आई जस्ट पेस्ट व्हाट आई वांट, राइट, जो कंटेंट है वो पेस्ट कर दिया। आई जस्ट आस्क चैट जीपीटी टू रीफ्रेज इट इन अ बेटर वे। तो वही कंटेंट को अलग तरीके से फ्रेम करके चैट जीपीटी दे देता है, फिर उसमें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन, मॉडिफिकेशन करके आई मेक अ पोस्ट ऑफ इट। तो हमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज ओपन फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। और जहाँ पे एंगेजमेंट ज्यादा मिला है, कोई पोस्ट वायरल हो गया है, तो उसको वायरल हुआ है वो ट्रेंड, जैसे मर्सिडीज वाला वायरल हो गया था, उसको तुरंत कैच करके अपने पास टेम्पलेट बना हुआ है, तो 5 ही मिनट लगता है बनाने के लिए। चैट जीटीपी के लिए शायद अलग सेशन लगेगा। I thought that both can be combined. So it is very simple. I mean, अभी तो already we have exceeded time, but Yes. उसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। I am exploring it, और वो फंक्शन ऐसा है ना, with time it will give us better results. So it is self learning platform also है। तो you can ask anything, but आपको क्या पूछना है वो आना चाहिए, किस तरीके से पूछना है उसको वो आना चाहिए।
आई मीन सी फ्रैंकली वो थोड़ा सा क्रेज है उसके ऊपर, इट इज नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस तरीके के दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी थे, बट दिस हैज बीन मेड वेरी सिंपल। आपको कुछ भी कंटेंट डालना है, यू कैन से फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क इट टू प्ले अ रोल, you can ask it to play a role. For example, I will ask it act like you are Warren Buffett and give give short speech on importance of starting to invest early. So it will वो एक दो लाइन पहले लिखेगा बीइंग वॉरेन बफे सो एंड सो, फिर वो इन्वेस्टिंग अर्ली का इंपॉर्टेंस के ऊपर वॉरेन बफे के लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट दे देगा। आप वो ऊपर वाला पोर्शन वॉरेन बफे का नाम हटा दो, वो टेक्स्ट उठा के पेस्ट कर दो, वो पॉलिश्ड लैंग्वेज में है, अच्छे टोन में है, उस तरीके से ओके यू कैन एक्सप्लॉइट इट टू योर एडवांटेज एज यू नो यू लाइक इट। दैट इज फ्री। Dipesh ji, आपने जो एनुअल सब्सक्रिप्शन बोला, that's like annual or it's monthly? एनुअल उसमें Annual. मंथली ऑप्शन भी है, बट वो भी अभी 4,500 रुपया एनुअल है। Okay, that's And, quite reasonable. Yeah. एंड चैट जीपीटी इज फ्री, नैना मैम। ओके राइट नाउ इट इज फ्री, उसका पेड वर्जन भी है, आई थिंक विच इज कॉस्टिंग क्वाइट अ लॉट, $40 पर मंथ है समथिंग है। बट उसमें कैसा है, फॉर एग्जांपल उसका बैंडविथ, चैट जीपीटी का बैंडविथ इतने लोग अभी यूज कर रहे हैं ना कि वो साइट काफी बार डाउन हो जाता है, वो हैंग हो जाता है। तो इफ यू आर यूजिंग द पेड वर्जन, ओनली एडवांटेज इज कि आपको साइट हमेशा अप मिलेगा, डाउन टाइम नहीं रहेगा। और पेड वर्जन में अभी कोई और एडिशनल फीचर नहीं है कि आप जब भी यूज करोगे आपको साइट रनिंग मिलेगा। अब जैसे मैं कल यूज करने को ट्राई कर, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, जो ये पीपीटी बनाया ना आज मैंने शेयर किया आपके साथ, उसका कंटेंट चैट जीपीटी से लिया है। अच्छा तो दैट इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी। जो भी मैंने वो डिजाइन कंसेप्ट वगैरह शेयर किए, उसका जो आउटलाइन था, इनपुट जो मुझे डालना था, जो जो चीजें चाहिए थी वो मैंने डाली, कंटेंट जो है वो पूरा चैट जीपीटी ने दिया है। Great. दैट इज हाउ आई यूज चैट जीपीटी। So Dipesh, we pray that you keep on experimenting with all these new things and you keep coming and taking sessions for us. आई विल बी मोर देन हैप्पी। Very दीपेश का पेड insightful. वर्जन आएगा, डोंट वरी, दीपेश का पेड वर्जन आएगा। हाँ दीपेश का आएगा पेड वर्जन, नो प्रॉब्लम, we'll go for Okay, that. Dipesh, what about the statutory requirement of size? जो अपना 2-3 लाइन जो अपना नीचे लिखना हाँ, है, उसमें 18. I think SEBI gave some size number. फॉन्ट 18। That is what you have fixed? यस बाय डिफॉल्ट वो 18 साइज में रहता है, बट हाँ. उसमें भी कैसा है, आप 18 साइज सारे फॉन्ट में थोड़ा फॉन्ट के हिसाब से डिफर करता है, राइट साइज। हाँ. तो आई यूज अ कंडेंस्ड वाला फॉर्म, जो फॉन्ट That होता is है वो, complying with 18. काफी बड़ा हो आई मीन फॉर एग्जांपल मैंने इसी में दिखाया था ना जो इमेज था, आई शेयर इट विथ यू। जो भी फॉन्ट मैं यूज करता हूँ फॉर डिस्क्लेमर वो 18 साइज का ही है, बट वो कंडेंस्ड है तो थोड़ा छोटा दिखता है कंपैरेटिवली, बाकी के टेक्स्ट को वो ओवर पावर नहीं करता है। So when all this information is available with say NJ, MCS people and Master Stroke, why they not using it appropriately? And they're bombarding us with so much content in one page. Right. They're also aware of all these things, suppose. but Or they should be aware rather. माइक्रो लेवल पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मेरे लोगों का कलर डिफरेंट है एंड दे कैन नॉट, अभी जैसे आइडियली फॉर मी आई विल यूज माय सेम लोगो कलर्स इन एवरी पोस्ट ऑफ माइन। दे आर केटरिंग टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो वो सेम टेम्पलेट तो यूज नहीं कर सकते हैं, उनको डिफरेंट करना ही पड़ेगा। So that is the I'm limitation. talking about content, over too much content. तो वो कर रहे हैं, बट आई डोंट, आई मीन सी टू ईच देयर ओन, आई मीन सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, बट मेरे हिसाब से कंटेंट जितना मिनिमल रहेगा और Yeah, absolutely. मैसेज इम्पोर्टेंट है, Absolutely, yeah. तो क्लटर नहीं दिखना Recently, चाहिए। one client mentioned, I see, but in depth नहीं पढ़ती हूँ because I suppose she is thinking it's too much content. करेक्ट हाँ. तो वो है, आई मीन बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो इनका भी कंटेंट बनता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज जो कंटेंट बनता है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड से ज्यादा सेल्स पिचिंग ज्यादा रहता है उसमें। तो वो सेल्स पिचिंग वाले में आपको दुनिया भर का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से वो देके
you are not doing any justice to the content. तो वो Correct. क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देना है, वैल्यू एडिशन देना है, और उसको ज्यादा समझना है, तो दैट ही शुड कॉन्टेक्ट अस, राइट? दे शुड कम टू अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. क्या सही है उनके लिए वो बताओ, बट बाकी सारा सब कुछ देना है वो, आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी टू गिव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. इट इज कंफ्यूजिंग, रैदर वो कंफ्यूज कर देगा उनको. पहली बात, 3 से 5 सेकंड के अंदर कितना समझेगा इंसान? 3 to 5 सेकंड्स के अंदर क्या देखेगा वो इतना सारा डेटा को एनालाइज करेगा, तो 3 से 5 सेकंड से ज्यादा हो गया. मीन सी एवरीबडी स्क्रोलिंग देयर मोबाइल, राइट? ऐसा 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 जाता रहता है. उसमें 3 सेकंड में आपको आपका इंफॉर्मेशन दिखाना है, आपका लोगो दिखाना है, और आपका मैसेज दिखाना है. तो इट इज टू मच टू आस्क इन 3 सेकंड. Yeah, so if you see your status, जिसने पढ़ा है उनका टाइमिंग देखोगे, you will know that they have just gone ahead. करेक्ट. That very second they have gone ahead तो वो आपका to the उसने next कुछ image. इम्पैक्ट, उसने आपका जो Yeah. इमेज है उसने कोई इम्पैक्ट नहीं किया. इट डिडंट सॉल्व आवर पर्पस. तो द लेसर द So have you कंटेंट. noticed कि आपका जो कंटेंट है और one पिक के बाद जो उन्होंने नेक्स्ट देखा है, there is a gap of time, or you think they are revisiting it later? आई हैव फ्रैंकली नॉट नोटिस्ड इट, बट जैसे व्हाट्सएप स्टेटस में कैसा होता है, कुछ इमेजेस ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे डालते हैं तो सामने से किसी का रिवर्ट आ जाता है. हाँ. अगर रिवर्ट कुछ लोगों का आया तो दैट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन बराबर जा रहा है. Correct. 1-2 लोगों ने भी रिवर्ट किया, आई मीन सी Yeah. 100 लोग देखने वाले तो उसमें 2-3 ही रिवर्ट करेंगे, बट 2-3 रिवर्ट कर रहे हैं, यानी इट इज पासिंग द मैसेज प्रॉपरली टू द अदर पीपल ऑल्सो. So some people notice and then they ask later, and then I don't know where to find my image because it's gone. Okay. ओके. It'll be somewhere in the mobile, but then I don't have any filing system नहीं, तो वो to फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए. to get it back. So Right. then they'll remember आपने एक ऐसा चीज रखा था, and then I'll So even in wonder my mobile, कौन सी whatever, चीज है. हाँ. तो इवन इन माय मोबाइल जो गैलरी है, फोटो गैलरी है, उसमें मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक फोल्डर है, हाँ. सोशल मीडिया पोस्ट करके. तो वो मेरे ब्रांड वाला जो भी है वो बाय डिफॉल्ट वही फोल्डर में जाके सेव होता है. तो इट इज इजी टू ट्रैक, मतलब बाद में रिट्रीव करना है तो इट इज इजी टू रिट्रीव. ऑटो सेव हो जाता है. नहीं, करना पड़ता है. आप वंस यू डाउनलोड द एनी इमेज ऑन योर मोबाइल, वो फोल्डर में जाके यू जस्ट हैव टू मूव दैट इमेज. एंड टेक्स्ट कैसे सेव करते हो फोल्डर में? टेक्स्ट नहीं सेव होता है. टेक्स्ट आई Images. मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ कहीं Yeah, पे. अपने फॉर आप. एग्जांपल, आई फाइंड अ गुड टेक्स्ट और गुड पोस्ट ऑन लिंक्डइन और फेसबुक, आई कॉपी दैट अपने आप टेक्स्ट एंड को सेंड इट. हाँ, अपने आप को व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. But WhatsApp storage is also an issue, no? So recently मैं one whole month का information by some button I think पूरा उड़ गया. बट व्हाट्सएप का भी बैकअप लेके रखो ना. एवरीडे माय नहीं, बैकअप नहीं हुआ क्योंकि there was no space. Okay, so बैकअप ही नहीं हुआ. That's how it स्पेस has के लिए happened. अपग्रेड करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव. लेकिन अभी कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, आप 1-to-1 करोगे, आपका Important- पर्सनलाइज इमेजेस ऑनलाइन क्या बोलते हैं, he will train you how to do it. इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट. सी इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. Yes. जस्ट थिंग इज एक टेम्पलेट बना लो. टेम्पलेट एकदम सिंपल रखना है, राइट? सी टॉप साइड पे कहीं पे भी आपका लोगो आएगा, बॉटम पे आपका डिस्क्लेमर आएगा, राइट? और बॉटम पे ही या वेबसाइट आपका डालना है. ये 3-4 चीजें खाली कंपलसरी हर इमेज में कंपलसरी है, राइट? और उसके बाद ओवरले क्या करना है, बैकग्राउंड आपको क्या रखना है या उसका कलर क्या करना है, एक ही बार का काम है. वन टाइम एक्सरसाइज फॉर 15-20 मिनट्स, उसमें हो जाएगा आपका ये. और एक्सपेरिमेंट करते रहो ना. एक टेम्पलेट बना लिया, कुछ दिन क्या होता है, एक टेम्पलेट को आप कुछ महीने यूज करोगे, फिर बोर हो जाओगे खुद ही देख देख के. तो उसको फिर कुछ महीनों बाद इम्प्रोवाइज करके नया टेम्पलेट बना दो, रिफ्रेश कर दो, अलग करेंगे तो अच्छा. राइट? So every few months you have to see. Everybody will get bored. We ourselves will get bored easily after some point of time. तो सिर्फ थोड़ा सा रिफ्रेश करना है उसको. Yeah, I was going to ask you that. Your growth quest color scheme is already decided. You're going to stick around with that. Yes.
So will that not give a repetition कि ये blue blue blue? थोड़ा रेपिटेशन होना चाहिए। अभी जैसे मैंने मेरा लिंक्डइन अभी पुराने टेम्पलेट्स थे उसमें पूरा ब्लू था। राइट नाउ आई हैव मूव टू वाइट बैकग्राउंड एंड उसमें ग्रे वाला इनलेस है। वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डार्क ब्लू के व्हाइट कर दिया उसको बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल। अपना लोगो चेंज करना है तो हाँ। लोगो के ऑप्शंस है, सॉरी, लोगो के ऑप्शंस है उधर। लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं बट वो बेसिक है, काफी बेसिक्स है, बट वो भी ऑप्शन है। अभी जैसे टीम लीप के जितने 3-4 लोगो मैंने डिजाइन किए थे सब कैनवा से ही किए थे, तो रेडीमेड टेम्पलेट्स में फिर मॉडिफिकेशन कर करके कर सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन रिलेशन टू ग्राफिक डिजाइन, या पीपीटी बनाना है, या इमेजेस बनाना है, वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम रील्स बनानी है, व्हाट्सएप स्टोरीज बनाना है, फेसबुक स्टोरीज बनाना है, सब कुछ पॉसिबल है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अलग साइज होता है टेम्पलेट का, तो वो हर एक अलग साइज में आपके लिए इमेज या वीडियो बन सकता है। तो उसमें ये भी ऑप्शन है पेड वर्जन में कि मैंने समझो एक साइज में बना दिया तो उसी इमेज को आई विल रीसाइज, तो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा दूसरे टेम्पलेट के फॉर्मेट में। आई हैव टू जस्ट फिनिशिंग टचेस देना रहेगा मेरे को, ऑटोमेटिक रीसाइज भी हो जाता है उसमें। Thank you, Dipesh ji. We need to leave now. Wonderful session. I think Most you are in the wrong. I think you are in the wrong business. you should start a business. You should start an ad agency or designing का काम शुरू कर दो आप। अरे he's doing well in all his businesses. वो ही ना, तो वो कर दो। चलो, thank you so much. मोस्ट वेलकम सर। ये आई मीन कैनवा का आई स्टार्टेड लर्निंग टू सेव ऑन कॉस्ट ऑफ एन एड एजेंसी। आई वाज इनटू अनदर बिजनेस, स्टार्टअप का बिजनेस था, तो वी वर 2 फाउंडर्स। तो वो मार्केटिंग एजेंसी जितना बजट नहीं था, इसके लिए खुद से सीखा और फेसबुक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग सब कुछ खुद से सीख के खुद ही किया। आप हमारा टीम लीप का मार्केटिंग ले लो सबका। Yes, please do that. चलो, thank you so much, boss. Most Need to welcome. leave. Nice. Thank you, Bye. Dipesh ji. Bye. Thank you. I Most must welcome. tell you, Bye. I downloaded the desktop version and I have started. Great. I'm going to template today. Sure, great. Any help required, do ping me. Sure. Thank you so much. Welcome. Thank you. Hello. Bye. Bye. Thank